Hello friends, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 9 NCERT syllabus Chapter 2 Socialism in Europe and Russian Revolution Part 5. So in NCERT syllabus the history portion is very lengthy and the world history is given here. So that is why to understand all the topics clearly, properly, it is necessary to discuss it deeply. So that is why this is the fifth part of the chapter 2. Here we are going to talk about Stalinism and collectivisms. Before chapter 1, 2, 3, 4, we studied about how did the socialism spread in Europe and what was the reason of the Russian Revolution. In last part, chapter part 4, we discuss about the socialist society. How did the socialist society formed in Russia, and Bolshevik group control all the administrative system, as well as they provide different kind of facilities to the laborers and the farmers, factory workers of that region. Here we are going to study about the uh, Stalinism, who was the leader after the Lenin of Bolshevik group, and what kind of reforms he done during this Russian Revolution. That is the concept of this part. So before I start my video, I would like to tell you that subscribe the channel first, press the bell icon. The next video is very interesting about the Hitler, Germany, the Second World War period. That is very good history to understand. And the remaining part, you will get the notification of the parts. That is why it is necessary to press the bell icon and like the video and share the video on your social media platform like Facebook and Instagram. तो लास्ट जो भी चार पार्ट इस वीडियो ये चैप्टर के बने हैं उसमें आपने पूरी तरह से ये समझ लिया है कि किस तरह से यूरोप में सोशलिज्म स्प्रेड हुआ, उसकी इफ़ेक्ट रशिया में किस तरह से हुई, किस तरह से ज़ार जो डिक्टेटर थे वो डिक्लाइन हुए रशिया में, और किस तरह से कम्युनिस्ट रूल रशिया बना. अब यहाँ पे स्टोरी आगे जा रही है, तो हम बात करते हैं ये पार्ट की कि द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लांट इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिविजन्स ऑफ एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे 1927 से 28 का जो पीरियड था वो रशिया के लिए प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि बाय 1927-1928 द टाउन्स इन सोवियत रशिया वेर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज. क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दी थी. अब गवर्नमेंट के फिक्स प्राइस में पेशेंट को और बेनिफिट नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया. The government fixed prices at which grain must be sold, but the peasant refused to sell their grain to government buyers at these prices. Stalin, who headed the party after the death of Lenin, so this is the Stalin. ये है स्टालिन, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो बोल्शेविक ग्रुप था उसकी पार्टी के लीडर बने लेनिन के बाद. इंट्रोड्यूस फिम इमरजेंसी मेजर्स, इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी. ही बिलीव्ड दैट रिच पीसेंट एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वेयर होल्डिंग स्टॉक इन द होप ऑफ हायर प्राइस. तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जो भी पैसे वाले जो फार्मर्स है वो अपना स्टॉक मार्केट में नहीं ला रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ने के बाद उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिले. Speculation had to be stopped and supplies conflicted. In 1928, party member toured the grain producing areas, supervising and forced grain collections and riding कुलाकास, द नेम ऑफ वेल टू डू पेशेंट. तो ये जो पेशेंट थे उनको कुलाकास बोला जाता था रशिया में. एज शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिविज्म फार्म. It was argued that grain shortage were plenty due to the small size of holding. तो यहाँ पे जो सप्लाई हो रहा था वो कम हो रहा था, उसका रीजंस क्या था. ये पुरानी जो स्टाइल है
इस तरह से वहाँ पे फार्मिंग होता था। ये पेशेंट है वहाँ के। और सप्लाई कम हो रहा था, उसका रीज़न था होर्डिंग। और उन्होंने होर्डिंग जहाँ पे भी होता था वहाँ पे वो एरिया को सीज कर दिया। आफ्टर 1917 land had been given over to peasant. These small siege peasant farms could not be modernized. To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulakas, take away land from peasant and establish state-controlled large farm. तो यहाँ पे पहले फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई लैंड। अब लैंड छोटे पीसेस में डिवाइड हो गई तो प्रोडक्शन कम हो गया। फिर बाद में सोचा गया कि जितनी भी लैंड है उसको नेशनलाइज कर दिया जाए, और जब बड़े फार्म हो तो उसके ऊपर मॉडर्न मशीनरीज यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। What followed was Stalin's collectivization's program. From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farm, kolkas, kolbos। तो वहाँ पे जो कलेक्टिव फार्म थे उनके ऊपर पिशन को काम करना था, यानी जो बड़े फार्म थे वहाँ पे द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। पिशंस वर्क ऑन द लैंड एंड द कोलकोज प्रॉफिट वॉज सैड। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. Between 1929 and 31, the number of cattle fell by one third. Those who resisted collectivism were severely punished. Many were deported and exiled. As they resisted collectivism, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. They merely did not want to work in collective farm for a variety of reasons. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. In spite of collectivism's production did not increase immediately. In fact, the bad harvest of 1930-33 led to one of most devastating famine in Soviet history when over 4 million dead. तो यहाँ पे ये सब प्लानिंग चल रहा था। पेशेंट सोशलिज्म्स के अगेंस्ट नहीं थे, पर इनको इस तरह से किसी के अंडर में वर्क करना और अपनी जो मेहनत थी उसके हिसाब से उनको वेजेस ना मिलना, उसके वो अगेंस्ट थे। स्टालिन ने कुछ लोगों को अलाउड किया कि वो अपने हिसाब से कल्टीवेट करें, पर सब कल्टीवेटर्स के सामने उन्होंने ये सिंपैथी नहीं दिखाई। ऊपर से 1933 में वहाँ पे फेमिन हुआ, जिसमें करीबन 4 मिलियन लोग डेड हो गई जिनकी। मैनी विद द पार्टी क्रिटिसाइज, ये फेमिन की सिचुएशन है जो वहाँ के न्यूज़पेपर में आ रही थी कि कैसे लोग मर रहे थे, कैसे एनिमल्स मर रहे थे फेमिन की वजह से। पिशन क्रॉप सीज डे एंड देयर एनिमल्स स्टार्व। तो जो भी पिशन थे उनके जो भी क्रॉप्स थे उसको सीज कर दिए गए थे, और इनमें वो फार्मर्स भी थे जो गरीब थे, और उनके एनिमल भी यहाँ पे मर रहे थे। मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द कन्फ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी एंड द consequences of collectivism. Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism. तो यहाँ पे जो भी स्टालिन की पॉलिसी प्लान्ड इकोनॉमी के अगेंस्ट जाते थे उनके ऊपर एक्शन लिया गया। Accusations were made throughout the country, and by 1939 over 2 million were in prisons or labor camps. और फिर सबको अरेस्ट करना चालू हुआ। 1939 तक 2 मिलियन लोग जो थे वो जेल में थे या तो लेबर कैंप्स में थे। मोस्ट वेयर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम। इसमें से ज़्यादा लोग इनोसेंट थे, पर उन्होंने क्रिटिसाइज की थी स्टालिन की पॉलिसी को, इसलिए उनको जेल में डाला गया था। अ लार्ज नंबर वेर फोर्स टू मेक फॉल्स confessions under torture and were executed. Several among them were talented professionals. इनमें से कुछ लोगों को बाई फोर्स ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि उन्होंने क्राइम किया है, और कुछ लोगों को जो इन जैसे इन लोगों को बाई फोर्स एक्सेप्ट करवाया जाता था, उनमें से कुछ लोग बहुत टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे। तो इस तरह से रशिया का पूरा सिनारियो जो था वो डिस्टर्ब हो गया था।
अब यहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या आता है रशिया के ऊपर, वो देखना है। तो द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द USSR. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it. तो यूरोप की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उन्होंने ये कम्प्लीटली इसका अपोज किया कि जिस तरह से बोल्शेविक ग्रुप ने पावर को अचीव किया और अपने पास रखा। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल्स imagination across the world. In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. The Bolshevik encouraged colonial peoples to follow their experiments. Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the People of the East 1920, and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties. तो रशिया के बाद USSR पार्टी यानी रशिया के आजू बाजू के जो रीजन थे, जो बाद में रशिया से अलग होके एक कंट्री बन गए, उन लोगों ने एक ग्रुप बना के नॉन बोल्शेविक ग्रुप बना दिया और बोल्शेविक ग्रुप की जो भी पॉलिसीज थी उसको अपोज किया। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द USSR कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। तो रशिया के ईस्ट में जहाँ ये कॉलोनी बनी थी वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स ने एजुकेशन लेना चालू किया। By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, रशिया का जो फॉर्म था वो USSR बन के सामने आया। Yet by the 1950s it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. फिर 1950 के बाद ये ध्यान में लिया गया कि USSR गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो एक्चुअली में रशियन रेवोल्यूशन के जो आइडल्स थे उसके हिसाब से नहीं है, क्योंकि रेवोल्यूशन हुआ था फ्रीडम के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, इंडिविजुअल रिकॉग्नाइजेशंस के लिए। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। फिर वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट हुई, वहाँ पे भी ये देखा गया कि सोवियत यूनियन में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वेर बीइंग फेड, बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज। तो रशिया का डेवलपमेंट हुआ 1950 के बाद, बहुत डेवलपमेंट हुआ। USA के सामने वो कॉम्पिटिटर थे, बट जहाँ पे सिटीजन को कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए, जितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली। बाय द एंड ऑफ द 20th century द इंटरनेशनल रेप्यूटेशन ऑफ द USSR एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन थ्रू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड द सोशलिस्ट आइडल्स स्टिल एंजॉय रिस्पेक्ट अमोंग इट्स पीपल। फिर USA का डिसइंटीग्रेशन हुआ और उसके जो आइडियाज़ थे उसको लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू किया, क्योंकि जो सोशलिस्ट आइडिया थे वो वहाँ के जो लोग थे उनको पसंद आ रहे थे। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वेर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। बट बाकी जो वर्ल्ड के कंट्री थे वहाँ पे ये सोशलिस्ट आइडिया थे, उनको फिर से एक बार स्टडी किया गया कि इसमें जो लोग हैं उनको कितनी फ्रीडम मिलती है, और इस तरह से डेमोक्रेटिक फॉर्म ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म में जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनके इंडिविजुअल राइट्स का ध्यान रखा जाता है, जबकि ये सोशलिस्ट रूल में ऐसा नहीं होता था। तो इस तरह से दुनिया को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिला सोचने के लिए, एक अलग तरीके के आइडियाज़ ढूंढने में आए, और किस तरह से कंट्री को चलाना है। डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली द नेसेसरी थिंग, बट विद दैट द सिटीजन्स ऑफ द नेशंस being the most important feature of whole administrative system, ये थॉट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिला। और इस तरह से ये रशियन रेवोल्यूशन की वजह से पूरा जो जारडम जो रशिया में था वो डिक्लाइन हुआ और सोशलिस्ट रशिया एक डेवलप कंट्री बन के दुनिया के सामने आया। और बहुत सारे फैक्ट्स लोगों के सामने आए,
बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पे ब्रिटिश रूल या तो कोई अदर यूरोपियन कंट्रीज़ का रूल चल रहा था, उनको एक कॉन्सेप्ट मिला, उनको एक एग्जाम्पल मिला। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन इस हिसाब से वर्ल्ड के दो इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशंस है, जिससे इंस्पायर होके वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए और लास्ट में उनको अपनी फ्रीडम मिली। तो एनसीईआरटी सिलेबस में रशियन रेवोल्यूशन को बहुत ही डीपली डिस्क्राइब किया है। अगर आप जीएससीबी टेक्स्ट बुक में रशियन रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो वो हार्डली 3 पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद रशियन रेवोल्यूशन के बारे में इंडिया में क्या बात हुई, तो अमोंग दोज द रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड वेर मैनी इंडियंस, सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी। बाय द मिड 1920s द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज द फॉर्म्ड इन इंडिया। जो मैंने आपको आगे भी बोला था लास्ट वीडियो में कि कम्युनिस्ट पार्टी को फॉर्म करने वाले जो थे हमारी कंट्री में, वो थे, मैं आपको यहाँ स्लाइड पे ही दिखा देता हूँ, ये है एम.एन. रॉय, जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने इंडिया में बनाई थी। तो 1920 तक इंडिया के बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट जो फॉर्म था गवर्नमेंट का उससे इम्प्रेस हुए थे और कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने भी गए थे। its member kept in touch with the Soviet Communist Party. Important Indian political and cultural figures took an interest in the Soviet experiment and visited Russia. Among them Jawaharlal Nehru and Rabindranath Tagore, who wrote about Soviet socialism. In India, writing gave impression of Soviet Russia. In Hindi, R.S. Avasthi wrote in 1920-21 Russian Revolution, Lenin, his life and his thoughts, and later the Red Revolution. ये बुक इन्होंने लिखी थी R.S. अवस्थी ने। S.D. Vidyalankar wrote the Rabindra Rebirth of Russia and the Soviet State of Russia. There was much that was written in Bengali, Marathi, Malayalam, Tamil and Telugu. तो सोशलिस्ट रूल को, कम्युनिस्ट रूल को यहाँ पे भी अप्रिशिएट बहुत मिला था। An Indian arrives in Soviet Russia in 1920. For the first time in our lives, we were seeing Europeans mixing freely with Asians. On seeing the Russians mingling freely with the rest of the people of the country, we were convinced that we had come to a land of real equality. तो यहाँ पे जब हमारे लोग बाहर की कंट्री में गए, यूरोप, रशिया में, तो वहाँ पे जाके देखा कि एक्चुअली में ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। We saw freedom in its true light. In spite of their poverty imposed by the counter-revolutionaries and the imperialists, the people were more jovial and satisfied than ever before. The revolution had instilled confidence and fearlessness in them. The real brotherhood of mankind would be seen here among these people of 50 different nationalities. No barriers of caste or religion hindered them from mixing freely with one another. Every soul was transformed into an orator. One could see a worker, a peasant, or a soldier haranguing like a professional lecturer. ये जो लिखा था वो लिखा था शौकत उस्मानी ने, हिस्टोरिक ट्रिप ऑफ द रेवोल्यूशनरी। तो ये रेवोल्यूशन की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन था लोगों के बीच का वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ और इस तरह से एक नए वर्ल्ड का इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुई, जहाँ पे कास्ट और रिलीजन के नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और यही सब कॉन्सेप्ट लास्ट में हमारी कंट्री में हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में, हमारी यूनिटी बनाने में हमें यूज़फुल हुए। तो ये है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, और इसके अलावा और कोई भी आपकी क्वेरी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। जो भी हमने डिस्कशन की है वो आपके समझ में आ गई होगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में है। जर्मनी का रोल क्या था, किस तरह से
जो जर्मन इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी उसको हिटलर ने वापस पावरफुल बनाया, किस तरह से जर्मन वो वॉर हार गए और फिर क्या हुआ, ये सब डिटेल नेक्स्ट चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे। तो उसके वीडियो के लिए वेट कीजिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आज के डेट में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उसमें हिस्ट्री बेस्ड नॉलेज के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। तो आई होप एंड आई रिक्वेस्ट दैट यू टेक इंटरेस्ट इन योर हिस्ट्री और द वर्ल्ड हिस्ट्री and pay attention to your education. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.